Friends, welcome on Yourpedia, and Yourpedia is the only platform and the best platform where you can prepare for any kind of group discussion, group task, personal interview, psychometric test, anything in public sector recruitments or campus placement recruitments. So in case friends you have got shortlisted for interview, Yourpedia is the platform where you should come and prepare with the mentors of Yourpedia. Interviews, group discussions, these are the things which do not come with reading or gathering the information or knowledge. These things you can practice, you can enhance the skills through a lot of practice. You need to do this. It's like swimming. I mean, by reading book you cannot be a swimmer. Similarly, by reading you cannot participate good in GD. You need to practice it. And Yourpedia provides you unlimited sessions for group discussions, all patterns, all formats of group discussion. Now our regular weekly GD topics panel discussion is available. You can watch that also, and we make the documents for all of you related to the important topics whenever GD is conducted. So the GD is conducted related to the relevant current topics. So we know presently Waqf board and its Waqf board act, Waqf act amendment 2025 and its case in Supreme Court, and that discussion is going on, and that is further linked to Uniform Civil Code, which is mentioned under Article 44 of Directive Principle of State Policies in Indian Constitution. So we also know that Article 25, 26 of Indian Constitution fundamental rights are the rights of minorities, linguistic minorities or religious minorities, and on the basis of minorities, rights of the minorities have the rights, fundamental rights to administer, run and manage their own activities. Maybe it is in the form of maintaining the land or maintaining the property, all these things. So fundamental rights, Article 25, 26, Article 44 Directive Principle of State Policy, Uniform Civil Code and Waqf board. And when we talk about Waqf board, then we talk about Hindu Temples Act also, we talk about Shiromani Gurudwara Pranbandhak committees also, we talk about Christian laws also. So religious laws, particular laws versus Indian Constitution and Uniform Civil Code, that is a big topic of discussion nowadays. So what is happening in Waqf board, what is this all about? This document talks about that, and presently the group discussion are going on. I am talking about the April. Presently GDs are going on in these organizations. Some are over, some are going to come. So Chennai Petroleum Corporation Limited, it is still to be there. ONGC, NHPC, Cochin Shipyard is over. So Cochin Shipyard, NHPC, ONGC, CPCL all had their group discussion. The formats can be different, like Cochin Shipyard format is different, but this CPCL the format is different. Now what is the relevance of GD? All of you know group discussion can be even eliminating, like in 40%, in CPCL, Chennai Petroleum Corporation Limited, you need to score minimum 40% to pass group discussion and interview stage. So group discussion can be eliminating. Very soon HPCL is going to come for junior executive positions. So in HPCL also this group discussion is eliminating. Unless until you pass GD and GT, you cannot go for interview. IOCL is going to come soon, and IOCL may also there is group discussion and all. So group discussions are very, very important, friends. To prevent elimination from these stages, you need to very clearly you need to prepare very nicely for all these and do lot of practice. Yourpedia is mentoring you for all these domains. In case you still you are not registered yourself with Yourpedia and you are expecting GDs to come, you can start preparing with us. And please take these documents which are published every week. So important GD topics documents. And today's my video is related to Waqf board. So Waqf is basically a legal entity, and Waqf board is created in each state. Now what is the literal meaning of Waqf? It's a Urdu word, if I am not wrong. It is the term which has a meaning. So what is the meaning of that term? So Waqf boards are maintained are in each state, and the purpose of the Waqf board established by state governments, and the purpose is to manage
and see the property dedicated for religious, charitable and pious purposes under Islamic law. So properties are to be used for particular purpose. So if suppose I have a property and I donate it for some particular cause to some community, the Muslim community, then that property becomes of that community. अब वही community उस property का use करेगी और उस purpose के लिए use करेगी जिसके लिए वो करना चाहते हैं. Of late, why this was in news, why the problems are coming, because वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है इंडिया में, बट उस प्रॉपर्टी का रिटर्न नहीं आ रहा है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, particular issues to other communities. Like I think there's a village in Tamil Nadu where entire village is the property of Waqf board. अब उस village के अंदर there are some very old temples also which belong to some another religious community like Hindu community. तो Waqf board belong to Islamic community और Hindu temples उसी property में आ जाना. So these are some of the issues which are popping up. There are some more issues also. So whenever we discuss any topic, we discuss कि उसको ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से किस तरीके से टॉपिक होगा. अब वक्फ बोर्ड एक प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वक्फ जो एक्ट है, जो पुराना एक्ट है, उसको अमेंड किया है और उस एक्ट को पास किया. बिल से वो एक्ट बना और एक्ट जब पास हो गया तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको विदहोल्ड कर दिया है कि आगे इस पर कुछ नहीं होगा. और अभिषेक मनु सिंघवी लॉयर हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, उनके अपने पॉइंट्स हैं. तो व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस एक्ट, व्हाट आर पॉइंट्स अगेंस्ट दिस एक्ट, वो हमें डिस्कस करना है. एंड देन आई विल टेल यू इसमें से कौन से जीडी के टॉपिक्स बन सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द टॉपिक्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो फ्रेंड्स, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ वक्फ, वैलिड वक्फ कैसे बन सकता है एज पर इस्लामिक सुन्नी लॉ. ऐसा बोला जाता है कि एक परमानेंट डेडिकेशन टू एनी प्रॉपर्टी, तो आप उसको वक्फ बना सकते हैं. जो वाकिफ होता है वो डेडिकेट जो कर देता है प्रॉपर्टी को, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी में जिसको फेथ है और वो माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो डोनेट कर सकता है, वो वाकिफ बन जाएगा. और डेडिकेशन जो भी है, जो आप करेंगे उसको मुस्लिम रिलीजियस लॉ, पीस एंड चैरिटेबल वर्क के लिए यूज़ किया जाएगा. तो वक्फ बोर्ड को जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी और आप उसको डोनेट कर सकते हैं. और डोनेट करते टाइम आप माइनर नहीं होने चाहिए. और ये परमानेंट बेसिकली डेडिकेशन है प्रॉपर्टी का, कि परमानेंटली आपने प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर दिया है. तो वैलिड वक्फ वही होगा जो परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. सो वक्फ का मतलब भी परमानेंट डेडिकेट कर देना होता है प्रॉपर्टी को. मैं प्रॉपर्टी को परमानेंटली दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, डेडिकेट कर रहा हूँ पर्टिकुलर कॉज के लिए. अगर मेरी को प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ को दे रहा हूं, मैं उसको वक्फ बना रहा हूं, तो दैट मीन्स आई एम डेडिकेटिंग, कमिटिंग माई प्रॉपर्टी फॉर पर्टिकुलर कॉज, एंड दैट कॉज इज रिलीजियस कॉज, दैट इज स्पिरिचुअल कॉज, दैट इज योर दिस कम्युनिटी के लिए मैं उसको दिया. मैंने उसको पर्टिकुलर एक पर्पज़ के लिए दिया जो चैरिटेबल है, रिलीजियस है, इस पर्पज़ के लिए मैंने उसको दे दिया. तो परमानेंट डेडिकेट करना प्रॉपर्टी को, उसको वक्फ बोलते हैं. सो ये डेडिकेशन के साथ होना चाहिए और ये परमानेंट होता है. और किसी भी मूवेबल, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है. आई कैन इवन गिव कैश, आई कैन गिव प्रॉपर्टी, आई कैन गिव लैंड, मूविंग, नॉन मूविंग प्रॉपर्टी सब. सो वक्फ राइट होता है उसको डोनेट करने का, सच प्रॉपर्टी, और किसी पर्पज़ के लिए उसको मुस्लिम लॉ के अंडर दिया जा सकता है. राइट अगर उसको लिमिटेड टाइम के लिए किया जाए तो वक्फ नहीं होता, तो ये परमानेंट है. इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो डेफिनेशन क्या है वक्फ का. वक्फ होता है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. वक्फ का मीनिंग ये है मूवेबल और इमूवेबल. वक्फ टर्म बहुत लोग सुन रहे हैं. सो ग्रुप डिस्कशन में जब तुमको टॉपिक स्टार्ट करते हो तो यहाँ से कर सकते हो कि फ्रेंड्स, today the topic of the discussion is related to Waqf board. Before I go forward, let me define the term. So Waqf means permanent dedication of the property for particular cause, and the cause has to be charitable, it has to be pious, it has to be religious cause. And the waqif, the person who dedicate or donate the property which can be movable, immovable, it is permanently done with dedication. This is the definition. So introduction of the GD itself, you can define the term. So I told you many times, whenever a group discussion topic is given to you, if you find some term is to be defined in that particular GD, that has to be defined in the introduction itself, so that all the members of the group should know that this is the topic given. So if the topic is given to Waqf, you should define Waqf. If the topic of the discussion is given Uniform Civil Code, you should define what is the Uniform Civil Code. What do you mean by Uniform Civil Code, right? So term has to be defined. तो आपने term को define कर दिया.
सो द मोमेंट यू मेड द प्रॉपर्टी एज वकफ, आपने डेजिग्नेट कर दिया उसको, तो ये परमानेंट होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है. नाउ इट इज ओन्ड बाय गॉड, एंड द मोमेंट इट इज ओन्ड बाय गॉड इट कैन नॉट बी टेकन बैक, राइट. So manage वक़फ़ boards are created in each states to protect and manage the वक़फ़ properties, जिसमें मॉस्क आते हैं, ग्रेवयार्ड्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, और वक़फ़ बोर्ड के पास बहुत सी प्रॉपर्टी है लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा है. ये एक एलिगेशन लगा है वक़फ़ बोर्ड के ऊपर, और इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है वक़फ़ जो बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2025 में. उसमें एक रीज़न ये है, whenever you participate in GD friends, you are not to take only one side, you have to put both the sides. That why Waqf Act Amendment Act 2025 is saying that there is a need of change. So the main reason being provided is mismanagement of the property. The property is there but its management is not there. Now each state has a Waqf board which has a chairperson and maybe nominee of the government. Normally Muslim legislators, parliament, members of parliament or state bar councils, so Islamic scholars, mutawalis, managers of Waqf, they basically become the chairman, and the purpose is to administer the properties, recover the lost properties, and sanction the transfer of immobile Waqf property through various methods. So this management of the Waqf property is done by them. वक़फ़ बोर्ड होता क्या है, एक लीगल एंटिटी है जो वक़फ़ एक्ट 1995, तो प्रेजेंटली वक़फ़ एक्ट अमेंडमेंट 2025 आफ्टर 30 years is making changes to this. Earlier there were other वक़फ़ एक्ट्स which were repealed, so we need not to talk. तो हमें जो बात करनी है वो दो एक्ट की बात करनी है, वक़फ़ एक्ट 1995 एंड वक़फ़ एक्ट 2025. वक़फ़ एक्ट 2025 is amendment, changes to वक़फ़ एक्ट 1995. So as of now वक़फ़ boards are administered under which law, which act? Waqf Act 1995. So this is the legal entity, and Waqf boards are created under this Waqf Act 1995, and they are the custodian of these dedicated properties. Now these are the state level. Then the central level पे there is a central Waqf council which is again statutory body जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है, और उसके अंदर एक पूरे मेंबर्स होते हैं, एंड इवन मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी द मेंबर ऑफ दिस Waqf council. And working of all Waqf boards in the states and proper administration is taken care of by Waqf Council, Central Waqf Council. गवर्नेंस स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है इनको एडमिनिस्टर करने में, मैनेज करने में, देयर इज अ रोल. अब वक़फ़ बोर्ड का इंपॉर्टेंस इज दिस, टू असेट को प्रिजर्वेशन करना, कम्युनिटी के वेलफेयर देखना, कल्चरल और रिलीजियस ये हेरिटेज होता है. So there has to be transparency and accountability also in the Waqf properties. So that also is one of the allegations that transparency and accountability is not there. So presently Waqf boards created as legal entity under Waqf Act 1995 are not transparent, are not accountable, are not managing the property properly. These are the main negatives which government wants to cure as per Waqf अमेंडमेंट 2025 एक्ट. सो ये बताया गया है कि इन रीजन से हम उसको चेंज कर रहे हैं. वक़फ़ बाय यूज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. बेसिकली वक़फ़ बाय यूज़र मीन्स ये एक वर्बल डिक्लेरेशन है कि लैंड की प्रॉपर्टीज जो रिलीजियस पर्पज़ या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उसको वक़फ़ प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्लॉज है वक़फ़ बाय यूज़र, और इसी को डिलीट किया है वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने. तो प्रेजेंट जो एक्ट है कंट्रोवर्सी, उसमें प्रेजेंट एक्ट की जो कंट्रोवर्सी है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ वक़फ़ बाय यूज़र. If you are using this property for religious purpose, it becomes the property of that particular religion. If you are using the property for particular purpose, अभी क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवानी है तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है. आप तहसील में जाते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो एक पर्सन डेडिकेट करता है और दूसरा पर्सन उसको एक्वायर करता है. रिलीजियस जो डोनेशन है वो दिया जाता है. जैसे अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता हूँ तो मैं उसको डोनेट करूँगा, तहसील में जाके मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, फोटो खिंचवाना पड़ेगा, सब होता है. लेकिन वक़फ़ बाय यूज़र which is as Waqf Act 1995 में जो mentioned है that if suppose I am conducting नमाज at some particular place, किसी ग्राउंड में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं बहुत टाइम से वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी. ये एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज है. सो वक़फ़ बाय यूज़र मीन्स
verbally you are declaring the property to be the property of वक्फ बोर्ड. सो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी verbally, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो नो डॉक्यूमेंटेशन, नो डीड इज साइंड, नो पेपर वर्क इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वक्फ बोर्ड. एंड वंस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बन गई तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बन जाएगी. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ विलेज इन तमिलनाडु विच एंटायरली इज डिक्लेयर्ड एज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी. और जब वो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बन गई तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर पर्पस. और उसी विलेज के अंदर कई हिंदू टेम्पल्स भी हैं, तो ऑब्वियसली अदर रिलीजियस और जो आपकी कम्युनिटी है उनको ऑब्जेक्शन है. एक सच्चर कमेटी बनी थी 2006 में फ्रेंड्स. उन्होंने ये बताया था, सच्चर कमेटी ने, ये कमेटी बनाई गई थी फॉर चेकिंग द टू मेक द असेसमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कि मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में जो है उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है. उसके ऊपर एक कमेटी बनी थी 2006 में. इस कमेटी की एक फाइंडिंग थी दैट वक्फ प्रॉपर्टीज आर टू बी यूज्ड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. उनका मार्केट वैल्यू के हिसाब से यूज नहीं हो रहा है. दे कैन जनरेट मिनिमम 10% ऑफ द रेवेन्यू, लेकिन वो उससे कहीं कम जनरेट कर रही हैं. सो सपोज यू हैव अ प्रॉपर्टी बट यू आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, देन इट इज टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली. सो गवर्नमेंट वांट्स दैट वक्फ प्रॉपर्टी जो है उनका प्रॉपर यूज हो और उनका प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर सकें. So lot of recommendations were given by Sachar committee also to improve management of the वक्फ. So जब आप डिस्कशन करते हैं GD में, आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अगर आप ऐसा कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कोट कर देते हैं तो आपको पॉजिटिवली नंबर मिलते हैं. इफ यू ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ वक्फ बोर्ड related topic, if you say that friends, in 2006 there was one Sachar committee which was conducted, which was created to make the assessment about socio-economic status of the Muslims in India and to suggest the improvement. Even Sachar committee suggested that there is need to manage the वक्फ board properly, right? And इसने recommend भी किया था कि जो public premises हैं, eviction of unauthorized occupant act 1971 के अंडर, वो basically illegal जो encroachment है वक्फ property का, उसको हटाए. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, और आप जानते हैं बिल पे जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं वो एक्ट बन जाता है, तो देन इट बिकेम वक्फ एक्ट 2025. सो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में लाया गया था, अगस्त में लाया गया था, and it wanted to basically reform this 1995 वक्फ एक्ट and increase the center's regulatory authority over वक्फ प्रॉपर्टीज. गवर्नेंस को इंप्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, मैनेजमेंट अच्छा करना, इसके लिए ये एक बिल लाया गया था जो अब एक्ट बन गया, और उस एक्ट को अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया. अब इस एक्ट का जो नाम रखा गया वो यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है. तो ये जो वक्फ एक्ट 1995 था उसका नाम चेंज कर दिया गया. अब ये नाम उसका UWMID, उम्मीद, W बीच में लगा दिया जाए अगर वक्फ का, तो उम्मीद से नए याद रख सकते हैं आप. UWMID एक्ट है 1995 का. इसमें 25 रिकमेंडेशंस हैं फ्रेंड्स, और इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं वो ये कि एक तो वक्फ जो आपका वक्फ बाय यूज़र जो है क्लॉज वो हटा दिया गया है. दूसरा, एटलीस्ट 2 वुमेन मुस्लिम वुमेन सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर होंगी, स्टेट वक्फ बोर्ड की मेंबर्स होंगी, और फीमेल इनहेरिटेंस लॉज दिया जाएगा. और कुछ वक्फ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल क्रिएट करने के लिए बोला गया, वक्फ रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए. और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, जो वक्फ बोर्ड से अगेंस्ट कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसको सुनता है, उसके डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. सो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई केस हो तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसको सुनेगा. तो इंडिया के अंदर बहुत सी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आर्म्ड ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सी ट्रिब्यूनल्स हैं, इवन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT वगैरह. तो डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल कैन बी क्वेश्चन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बट दिस ट्रिब्यूनल का डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन हाई कोर्ट. ऐसा था, तो उसको भी बोला गया कि नहीं, द डिसीजन कैन बी क्वेश्चन इन हाई कोर्ट्स. तो वो भी इसमें चेंज लाया गया है. अब ये जो एक्ट था इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. तो 17 अप्रैल का केस था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वक्फ का जो डिसीजन है, वक्फ की जो वक्फ बाय यूज़र है
वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बाय यूज़र, उस चीज़ को अभी डी नोटिफाई ना किया जाए, प्रॉपर्टीज़ के छेड़खानी ना की जाए जो वक्फ बोर्ड की हैं। अभी 5 मई को दोबारा से डिसीजन होगा। तो रिसेंट इशू क्या आया कि वक्फ सेंट्रल वक्फ जो काउंसिल है उसको यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज जो होते हैं वो बेसिकली उसको चेयर करते हैं और बाकी सारे मेंबर मुस्लिम्स होते हैं। लेकिन वक्फ एक्ट में ये बोला गया है कि कुछ मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं और कंसेप्ट जो है वक्फ बाय यूज़र का वो हटा दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि क्या नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है या वक्फ बाय यूज़र को हम हटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाय यूज़ आपके नाम पे नहीं हो सकती। अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंटेशन होते नहीं हैं। अब की बात अलग है कि अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप डोनेट करते हो, लेकिन थिंक ऑफ हज़ारों साल पहले जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी लिया होगा वहाँ पे उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो अगर आप आज क्वेश्चन करेंगे, कलेक्टर आज क्वेश्चन करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो शायद उनको डॉक्यूमेंट ना मिले। दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो ये है कि आप वर्बली कैसे बेसिकली प्रॉपर्टी नाम पे ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू चलना पड़ेगा और इसके सारे के सारे वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल रखना पड़ेगा और एफिशिएंट यूज रिसोर्स का करना पड़ेगा। वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस रिलीजियस कम्युनिटी और दैट रिलीजियस कम्युनिटी, बट इवेंचुअली फ्रेंड्स ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज आर विद इन द नेशन, दैट इज कंट्री, एंड proper and efficient use of the this particular properties is very important। चाहे उसका बेनिफिट मुस्लिम्स को ही जाए, लेकिन मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही है और प्रॉपर तरीके से आप उसका एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का बेनिफिट कम्युनिटी को होगा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी है। तो कुछ चैलेंजेस क्या हैं? वक्फ एक्ट 2025 जो एक्ट बना उसको किस बेस पे चैलेंज किया गया है, क्या चेंजेस नहीं चैलेंज नहीं क्या चेंजेस, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, चैलेंज नीचे हम डिस्कस करेंगे। वक्फ एक्ट 2025 ने किया क्या है? पहली बात, एलिमिनेशन ऑफ वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट हटा दिया गया है सो दैट आर्बिट्रेरी क्लेम प्रॉपर्टी पे ना हो सके। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया है, मोर एक्टिव रोल गवर्नमेंट को दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्यादा रोल दिया गया है और इसका क्रिटिसिज्म है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी गवर्नमेंट का ही आदमी होता है। इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, इसमें नॉन मुस्लिम्स को डाल दिया गया है इस नाम से कि और डाइवर्स होना चाहिए और मुस्लिम्स वुमेन को भी इसमें डालना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव बने। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑडिटिंग वगैरह की बात की गई है और कुछ रिलीजियस और ट्रस्ट, ये तो वो हैं जो चेंजेस लाए गए हैं। तो कौन कौन से चेंजेस वक्फ एक्ट 2025 जिसको चैलेंज किया गया है उसने कौन से चेंजेस सजेस्ट किए हैं? क्या अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी और भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं? बिल्कुल, हिंदुओं का टेम्पल ट्रस्ट है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानन एंड साईबाला संस्थान ट्रस्ट शिरडी में। तो ये सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई में, ये भी कुछ रिलीजियस हैं हिंदुओं के। ये क्रिश्चियंस के रिलीजियस बोर्ड्स हैं, ये सिखों के रिलीजियस बोर्ड, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है सिखों की। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट क्या पॉइंट्स हैं कि क्या नहीं होना चाहिए? तो वक्फ बाय यूजर, अब मनु सिंघवी जो हैं, जो लॉयर हैं, जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का केस वक्फ का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि वक्फ बाय यूजर का कंसर्न क्या है। वक्फ बाय यूजर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी को बेसिकली लॉन्ग टर्म यूसेज के बेस पे रिकॉग्नाइज करता है। अगर सपोज आप वक्फ बाय यूजर को रिमूव कर दोगे तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो हजारों साल से यूज हो रही हैं जिनका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, और शायद अगर उनका डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सारी प्रॉपर्टीज मर्ज कर दी जाए। इसका डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंस होगा क्योंकि बहुत सी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज का जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है वो मर्ज हो जाएंगे और सेंचुरी से जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलीजियस ऑटोनॉमी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अभी भी हमारी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो रिलीजियस ऑटोनॉमी जो मुस्लिम्स को एज माइनॉरिटी के नाम पे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके ऊपर भी एक अटैक है। कलेक्टर की पावर का मिसयूज भी हो सकता है अगर वो वक्फ प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज कलेक्टर इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं और वो शायद उनको अगर पावर दी जाए तो पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस हो सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आर्टिकल 25-26 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है माइनॉरिटीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का। तो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उनके पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ये रिलेटेड टर्म है कि पूरी कंट्री के अंदर पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए। हिंदुओं के लॉ, क्रिश्चियन के लॉ, सिखों के लॉ, मुस्लिम्स के लॉ नहीं होने चाहिए। सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए।
अब ये आर्टिकल 44 में मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में आप जो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसके लिए आप जुडिशरी में नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट एक ट्राई जरूर करेगी कि कंट्री के अंदर ये चीज को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यही है कि अंग्रेजों के टाइम से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, फिर हिंदू कोड बिल आए, शाह बानो केस आया, ये कुछ केसेस हैं जो आप देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में क्या चीज जाती है कि इक्वालिटी और जस्टिस मिलेगा लोगों को, सेकुलरिज्म जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, नेशनल इंटीग्रेशन होती है इससे। तो पर्सनल लॉज को ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा जाना चाहिए। तो पर्सनल लॉज, पर्सनल रिलीजियस बिलीफ जो है दैट इज सेकेंडरी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशन के इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर देना चाहिए इन द नेशनल इंटरेस्ट। आर्गूमेंट्स क्या हैं यूसीसी के अगेंस्ट? कि रिलीजियस फ्रीडम तो दिया हुआ है आपने आर्टिकल 25 में, तो पर्सनल लॉ को फॉलो करने दो, कल्चरल डाइवर्सिटी रहेगी, माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे। और प्रैक्टिकल चैलेंजेस आती हैं जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हर रिलीजन के कुछ बिलीफ होते हैं। सेंटर का स्टेटस ये है कि प्रेजेंटली अभी करंट का जो स्टेटस है वो ये है कि प्रेजेंटली यूसीसी नहीं है, ओनली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको पास किया है, गोवा में पुर्तगीज के टाइम पे ये था, और एक आधी स्टेट और ने इसको इम्प्लीमेंट किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अदरवाइज लार्जली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। चैलेंज क्या आएंगे? कंसेंसस बनाना डिफिकल्ट है, और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 25% मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में, और भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और पॉलिटिकल विल भी इसके लिए चाहिए। तो कुछ रिलीजियस लॉज के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम्स के शरीयत एक्ट है, क्रिश्चियंस के एक्ट हैं, लॉज हैं, उनके बेस पे ये सब चलता है। अब फ्रेंड, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो सफिशिएंट है। इस पर बहुत से जीडीज करने के लिए, माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस यूनिफॉर्मिटी इन प्रॉपर्टी लॉज, स्पेशल रिलीजियस प्रोविजन वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैनेजिंग रिलीजियस एंडोमेंट्स, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, नेशनल इम्पैक्ट, रोल ऑफ वक्फ बोर्ड इन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एड्रेसिंग इलीगल ऑक्यूपेशन while upholding right and dignity of all the citizens, implication of minority rights, waqf autonomy, potential conflict with national legal framework, balancing religious freedom with national security concerns, minority empowerment versus national development। तो ये आपके बहुत से टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स जीडी के जो बन सकते हैं इनके ऊपर, और आपको जो कंटेंट है बेसिकली इनको इन जीडी टॉपिक्स को कंडक्ट करने के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए वो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। तो ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको आप ले लें, और ऐसे ही बहुत से डॉक्यूमेंट और भी हैं, उनको आप पढ़ो। अगर जीडी आप मास्टर करना चाहते हैं तो वो आपको योरपीडिया मेंटर के साथ प्रैक्टिस करके आएगा। सो आई वेलकम यू ऑल नाउ टू ज्वाइन आवर सेशंस एंड प्रिपेयर वेल विद अस। थैंक यू।